Namaskar दोस्तों, good evening friends. I'm Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you're watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. और आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 497th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Today we had 8,488 new cases of COVID-19. And this number is huge, but it is the lowest since May last year. We still have a high natural infection rate, so therefore we don't have any COVID vaccine booster plan as of yet, says the government. In other parts of the world, good news for us from the United Kingdom, where Covaxin has been recognized as a valid COVID-19 vaccine for travel from today. In the US, Dr. Fauci says that vaccinated family members can now enjoy maskless Thanksgiving. So no need to wear masks if you are vaccinated. You can celebrate the festivals properly. And New Zealand is going to end its strict COVID curbs and adopt a new virus fighting system next week. So all over the world, things are changing. COVID has changed the way in which we think. COVID has changed the way in which we live. COVID has changed the way in which we approach health. But some things are heavyweight. Some things don't move so suddenly. So let's go to our topic for today. अपने शो में हम नॉर्मली बात करते हैं मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ केयर की, कभी साइकोलॉजी, कभी साइकाइट्री, कभी मेडिसिन, बट आज हम बात करेंगे सर्जरी की और हमारा टॉपिक है बैरियाट्रिक सर्जरी. इससे मुंह भरता है, बहुत भारी वाला टॉपिक है ये, बट इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया स्पीकर हैं, डॉक्टर अभिषेक कटकवार. वार्म वेलकम डॉक्टर अभिषेक. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू. डॉक्टर अभिषेक कटकवार एक बहुत फेमस किताब के ऑथर हैं. इनकी बुक का नाम है बियॉन्ड वेट लॉस सर्जरी एंड ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर at the Center for Obesity and Metabolic Therapy, and also he is a consultant in laparoscopic bariatric and metabolic surgery at AIG hospitals in Hyderabad. So Hyderabad तो एक बहुत फेवरेट सी जगह है हम सब के लिए. डॉक्टर अभिषेक, what is the best food that you get in Hyderabad? Obviously, Hyderabad is famous for biryani, sir, and biryani with a cold drink, which is a deadly combination. It's a favorite food for everyone. And Dr. Abhishek is an active member of many professional organizations. मैं डॉक्टर अभिषेक को कैसे जानता हूं, क्योंकि जब ये लेक्चर देते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी पे अपने फील्ड पे, तो सबको समझ आ जाता है कि क्या बता रहे हैं. डॉक्टर अभिषेक, so many people logged in today, people from all across the country. Aruna Tyagi ji and Anamika Anu saying good evening to you, and Dr. Rameshpal Singh Pawar, sir, is a senior pediatrician, wishing you good evening. तो सर अपने सब्जेक्ट के बारे में तो समझाएं. सर्जरी तो हमें समझ आती है, सर्जरी मीन्स ऑपरेशंस, बट व्हाट इज बैरियाट्रिक सर्जरी, व्हाट इज मेटाबॉलिक सर्जरी, इनका मतलब क्या होता है? Sir, bariatric is a word which came from Greek word means baros. Baros means obesity. So जब ये सर्जरी आई फील्ड में आज से 20-30 साल पहले, तो बेरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली होती थी ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए. उस समय हमको सिर्फ इतना ही पता था कि अगर हम स्टमक को छोटा करेंगे, स्लीव करेंगे या बाईपास करेंगे तो उससे वेट लॉस होगा. बट इन रीसेंट टाइम्स वी हैव रियलाइज कि ये सर्जरी ना सिर्फ ओबेसिटी को ट्रीट करती है बल्कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज. सो अब ये एक नया टर्म इवॉल्व हुआ है, मेटाबॉलिक सर्जरी, विच इज मोर रिलेटेड टू मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज एंड फैटी लिवर, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन. तो सर्जरी हमें समझ आई, ऑपरेशंस हैं. बैरियाट्रिक सर्जरी हुई जब आप ऑपरेशन के साथ वजन कम करते हैं, और मेटाबॉलिक सर्जरी हुई जब सर्जरी के साथ आप मेडिकल बीमारियों का भी इलाज कर देते हैं. जी हाँ सर. तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हाँ, बिकॉज डॉक्टर आर.एस. चौधरी सर इज ऑल्सो लॉग्ड इन विद अस. सर इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सर्जन्स ऑफ हरियाणा. नमस्कार डॉक्टर चौधरी सर. And I'm sure Dr. Chaudhary will be happy that finally a fellow surgeon is on KK Med Talks. Dr. Nanlal Sharda sir हैं, sir is physician from Ahmedabad, and Madam Savita Bhutani भी हैं.
तो डॉक्टर अभिषेक एक बात तो बताएं, अगर हम जनरल मेडिसिन को देखें या जनरल सर्जरी को, तो ऐसा एक वेव आ रहा था, जैसे पहले प्रोस्टेट का या गदूद का सिर्फ ऑपरेशन से इलाज होता था, अब दवाइयों से जी हाँ। होता है। पहले जब दाखिल करते थे हम ऑपरेशन के बाद, तो 10 दिन के लिए दाखिल करते थे मरीज को। अब आप लेप्रोस्कोपी के साथ दूरबीन के जरिए ऑपरेट कर देते हैं और एक दिन में मरीज को वापस घर भेज देते हैं। सो जी दिस हाँ इज द ट्रेंड दैट इज अकरिंग। कैन यू जस्ट टॉक अबाउट द जनरल ट्रेंड, advances in surgery, and then how सर। metabolic surgery is bucking that trend, how it is changing it? सर एक हम लोग सर्जरी में एक वर्ड यूज करते हैं इरास, ERAS, इनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। सो इस शब्द का मतलब ही सब मायने हमको बता देता है कि कैसे हम सर्जरी के बाद रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। बिकॉज सर्जरी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन रिकवरी जो है वो बड़ा पेनफुल पीरियड होता है पेशेंट के लिए। बिकॉज उस समय उसको जो चीरा लगा होता है उसका दर्द होता है, उस समय ऑपरेशन से रिलेटेड दर्द होता है, पेशेंट ऑलरेडी एंग्जाइटी में रहता है। तो इनहांस रिकवरी का मतलब ये है कि ऐसी सारी चीजें जो पेशेंट की रिकवरी को बहुत तेजी से रिकवर करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें लैप्रोस्कोपी है। जैसे हम सब जानते हैं कि ओपन सर्जरी एक बहुत पुरानी चीज हो गई, अभी भी ओपन सर्जरी का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है, लेकिन लैप्रोस्कोपी आने से बहुत 90% काम हम लैप्रोस्कोपी से कर लेते हैं, तो विच इज अ पार्ट ऑफ इनहांस रिकवरी। दूसरी चीज ये है कि पेशेंट को जो प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम हमारे हर पेशेंट को ये समझाते हैं कि 6 घंटे बाद जैसे ही आपको होश आए, सबसे पहले आपने खुद डिमांड करना है कि मुझे चलना है, मुझे टॉयलेट जाना है। मैं अपने किसी भी पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर नहीं डालता हूँ अनटिल अनलेस इट इज नेसेसरी। हमारे किसी भी पेशेंट को हम राइस ट्यूब नहीं डालते हैं सर्जरी के समय, सिर्फ एक इंट्रा कैथ लगाकर हम ये सर्जरी करते हैं। तो इससे ये होता है कि पेशेंट की भी एंग्जाइटी कम हो जाती है कि हाँ भाई सिर्फ एक छोटा सा इंट्रा कैथ लगा के मेरा सारा ऑपरेशन हो गया। बहुत सारे लोग लॉग्ड इन हैं, एंड आई थिंक वन कमेंट जायसवाल साहब का है, राजेंद्र जायसवाल जी का, जिसके साथ जायसवाल जी मैं सहमत हूं आपके साथ। राजेंद्र जी कह रहे हैं, आई वाज कीनली अवेटिंग फॉर दिस टॉपिक। तो मैं कहूंगा मी टू, आई वाज आल्सो वेटिंग फॉर इट। And Gariga is logged in with us. Gariga from Hyderabad. Gariga ji says that I did not introduce you completely. आपका जो हॉस्पिटल है, इट सीम्स इट इज अ वेरी फेमस हॉस्पिटल इन हैदराबाद। तो इसके बारे में बताएंगे सर, पूरा नाम और ये हॉस्पिटल में क्या क्या किया जाता है? सो बेसिकली AIG का फुल फॉर्म है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और ये हॉस्पिटल 1998 में डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जिनको हम सब जानते हैं, विच इज he is a renowned gastroenterologist and he is famous for all his pioneer work which he has done. तो ये हॉस्पिटल डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी साहब ने शुरू किया था, और बाद में डॉक्टर GV राव साहब जो हमारे सर्जिकल हेड है वो भी ज्वाइन किए इनके साथ में। और ये जर्नी बहुत ही इनकी इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी थी। एंड फाइनली जो नया हॉस्पिटल अभी बना है, आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था क्लीवलैंड क्लिनिक या मेयो क्लिनिक, जब उनकी टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने बोला कि अब AIG हॉस्पिटल ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया, नाउ वी आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इंडोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी। अरे दैट इज वेरी नाइस, दैट इज रियली गुड, एंड दिस इज वेरी हार्ट वार्मिंग, एंड इफ AIG कैन डू इट, इफ हैदराबाद कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट। एंड आप सबको याद होगा, अभी हफ्ता पहले प्रोफेसर राकेश सहाय थे हमारे पास शो पे, उन्होंने हमें जी हाँ। बताया था, और गरिगा जी ने भी बताया था कि उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की टीम 100 साल पहले गई थी इंग्लैंड, वहां वाले जी हाँ। डॉक्टर्स को एनेस्थीसिया सिखाने। तो हाँ हाँ। अब 100 साल के बाद डॉक्टर अभिषेक कटकवार पूरी दुनिया में माने जाते हैं फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी। थैंक यू सो मच केदार सर। जोशी जी भी हैं हमारे साथ, अवध किशोर राठौर जी भी हैं, आशुतोष जायसवाल जी, सो मेनी पीपल लॉग्ड इन, मैडम करुणा प्रमोद इज देयर, एंड सब लोग आपको थैंक यू कर रहे हैं। आपका जो बात करने का तरीका है बहुत सरल है, वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट बिकम सो इजी। हमें हमेशा लगता था कि जो सर्जन लोग होते हैं वो बड़े ना धांसू टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के, वो बात नहीं करते, उनको हंसना नहीं आता। यस, सो कैन सर्जन स्माइल, कैन दे लाफ? यस यस। सो एक्चुअली इसका क्रेडिट मेरे पेशेंट्स को ही जाता है सर, क्योंकि आप किसी भी सर्जन को अगर मिलेंगे, so as a surgeon we are always trained to perform in operation theater, but my performance start at the first meeting when I see my patient.
मेरे पेशेंट से जितनी देर बात करता हूँ उससे कम टाइम में मेरी सर्जरी हो जाती है। सो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि क्योंकि ये सर्जरी जो है ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं है जिसमें हम कुछ चेंजेस कर दे रहे हैं। ये सर्जरी के पीछे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इसका कारण जानने की, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी मर्जी से मोटापा नहीं चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसको अच्छे कपड़े आए, वो अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उसको मोटापा आ गया है तो उसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी। बहुत बार ऐसा होता है कि कारण हम जाने बिना ही अगर ऑपरेशन कर दे और उस कारण का हमने इलाज नहीं किया है तो ये सर्जरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। तो सर काउंसलिंग कैसे करते हैं आप? अब मान लो कोई ओवरवेट या ओबीज पेशेंट है, तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेशंस फर्स्ट। क्या क्या रीजन है कि हम ऑपरेशन करवाएंगे मोटापे के लिए? लेट्स जस्ट तो टॉक अबाउट द सबसे इंडिकेशंस फर्स्ट। हाँ। यस, सबसे पहले जो आपने बात बोली काउंसलिंग कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले काउंसलिंग करता हूँ परिवार की। क्योंकि परिवार के लोग ही बहुत बार एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं किसी इंसान के मोटापे के पीछे। क्योंकि उनके उनका नजरिया होता है कि वो चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके ये जो इंसान जिसको मोटापा है वो अपना वजन कम करे। पर अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन बराबर नहीं हो पाता। मान लीजिए कोई जो इंसान मोटापा है वो जब खाना खाने बैठा उसको टोक रहे हैं लोग, या हर दूसरा इंसान उसको फ्री की एडवाइस दे रहा है वेट लॉस के ऊपर, तो धीरे धीरे हमको पता नहीं चलता है लेकिन धीरे ना धीरे हम उस इंसान के दुश्मन बन रहे हैं। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उसके बात रजिस्टर हो रही कि ये इंसान मुझे हमेशा इस बात के लिए टोकता है, मुझे इससे दूरी बना के रखना है। ये इंसान, ये नॉर्मल सी बात है, हम हमारी रूटीन में भी देखते हैं, जो इंसान हमारे बारे में हमेशा गलत बोले हम उससे थोड़ी डिस्टेंस बनाते हैं। और मोटापा इतना सेंसिटिव होता है किसी इंसान के लिए कि हम सोच भी नहीं सकते कि 24 घंटे उस इंसान के दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं कैसे वजन लूज करूं। और इसी कारण से वो जो मार्केटिंग देखते हैं, जो पाउडर्स बिक रहे हैं मार्केट में, वेट लॉस मेडिसिन दिख रही है, बिकॉज ये सॉफ्ट टारगेट्स है जो इंसान मोटापे से ग्रसित है। तो इसलिए फैमिली की काउंसलिंग सबसे पहले होती है। और आपने जो बात की इंडिकेशन की, तो इंडिकेशन बहुत ही स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए अलग है और इंडियन पॉपुलेशन के लिए अलग है। और उसको नापने का जो नजरिया है वो मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज हम उसको बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम सब जानते हैं। बट बॉडी मास इंडेक्स ही एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बिकॉज वजन हम कॉन्सेप्ट आप हमने सुना होगा कि अनहेल्दी ओबीस एंड हेल्दी लीन एंड हेल्दी ओबीस एंड अनहेल्दी लीन। कोई इंसान दुबला पतला हो सकता है बट अनहेल्दी हो सकता है, कोई इंसान मोटा हो सकता है बट बहुत एक्टिव हो सकता है। तो खाली बीएमआई एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम सिर्फ बीएमआई क्राइटेरिया यूज करते हैं। और उस हिसाब से अगर देखें तो किसी भी इंसान जिसका बीएमआई 32.5 से ज्यादा है, प्लस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है जैसे हाइपरटेंशन, लिपिड, हाइपरलिपिडीमिया या फैटी लीवर है, तो इन लोगों को बेरियाट्रिक सर्जरी का इंडिकेशन होता है। दूसरे जो मरीज जिनका बीएमआई 35 से ज्यादा है, प्लस उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है चाहे ना हो, अगर बीएमआई 35 से ज्यादा है तो इनको भी हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और अब बात आती है मेटाबॉलिक सर्जरी की, जिसको हम डायबिटीज सर्जरी भी बोलते हैं डायबिटीज के लिए। उसका इंडिकेशन ये है कि किसी भी इंसान जिसका बीएमआई 27.5 से ज्यादा हो, प्लस HbA1c जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं वो मोर देन 7 है। तो ये एक मोटा मोटा एक इंडिकेशन मैंने आपको बताया। So let us just revise what Dr. Abhishek has told us. If your body mass index is more than 35, then you may be a candidate for bariatric surgery. If your यस, body mass index is more than 32.5 and you have a metabolic disease, हम इसे ढोल बोलते हैं, anything out of diabetes, hypertension, O for obesity, O for ovarian dysfunction, polycystic ovary syndrome, O for obstructive sleep apnea, L for जी, lipids या कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, L for liver disease. तो 35 and above obesity, 32.5 and above obesity plus ढोल, एंड अगर 27.5 से ऊपर है एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल डायबिटीज है तो एक डिफरेंट टाइप की सर्जरी होती है। तो ये तो हुए हम कैंडिडेट्स फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी। दूसरा ये कि जब हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो अकेले हमने नहीं जाना, पूरे परिवार ने जाना है। दी एंटायर फैमिली हैज टू गो, बिकॉज डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं भी हम सर्जरी क्यों करवाना चाहते हैं और सर्जरी कराने के बाद क्या होगा, उससे पहले क्या हो रहा है।
Dr. Abhishek, in endocrinology, we use two terms. One is body shaming. तो इसके बारे में Yes. बात करेंगे. एंड अनदर टर्म दैट वी हैव ट्राइड टू पॉपुलराइज नाउ इज द बैरो फिनोटाइप, जिसमें हम वही चीज बोलते हैं जैसे आप कह रहे हैं, अकेले एक बीएमआई के नंबर पे नहीं जाना, बाकी चीजें भी देखनी है. तो बैरो फिनोटाइप की तो बाद में बात करते हैं, बट व्हाट इज बॉडी शेमिंग एंड व्हाट मैसेज वुड यू वांट टू गिव टू द एंटायर वर्ल्ड? मैं सबसे पहला जो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये हमको हमारी डिक्शनरी से फैटी शब्द हटा देना चाहिए. हम अगर किसी इंसान को फैट है या फैटी बोल रहे हैं, ये दिस इज अ काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग वर्ड्स. और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई इंसान दुनिया में मोटा नहीं होना चाहता, हर इंसान चाहता है मैं अच्छा दिखूं. और मैं इसको कंपेयर करता हूं, मैं हमेशा मेरे टॉक्स में बात बोलता हूं कि ओबेसिटी को हमको कैंसर के समान मानना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली का जो कैंसर पेशेंट रहता है उसके साथ सबकी सिंपैथी रहती है. हर इंसान उसके लिए सोचता है मैं कैसे मदद करूं इसके ऑपरेशन में, या इसको मैं कैसे सपोर्ट करूं मेंटली. लेकिन जो इंसान मोटापे से ग्रसित है, उसको हम बेसिकली हम उसको ही विक्टिम को ही ब्लेम करने लगते हैं कि यार तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम आलसी हो या तुम बहुत ज्यादा खाते हो इसलिए तुम मोटे हुए हो. तो ये सबसे बड़ी खराब बात है कि ब्लेमिंग द विक्टिम इज द वर्स्ट थिंग व्हिच कैन हैपन टू समबडी. तो ये चीज बहुत जरूरी है हम सबके लिए जानना. एक शब्द है इंग्लिश का, बॉडी शेमिंग, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने बात की. एक और जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एंडोक्रिनोलॉजी में हमारे सब्जेक्ट में, उसका नाम है बैरो बुलिंग. तो बुलिंग तो हम जानते हैं, मतलब एक बच्चा दूसरे को बुली करता है स्कूल में, आपके सीनियर्स आपको बुली करेंगे जब आप काम पे हो. तो बैरो बुलिंग, डॉक्टर अभिषेक, हैव यू एनकाउंटर्ड दिस इन योर पेशेंट्स? डू दे कंप्लेन A ऑफ lot. बुलिंग? Yes. I can share more than 50 stories about barrow shaming and how it has affected them. And इतनी सारी कहानियां हैं. I still remember when I was in Taiwan, and there was a patient who came to us. He was very energetic young boy of around 27 years, and he was not worried about anything. The only worry he said, I am the best performer of my company. He was an manager for some shopping complex, but he was not being promoted to the main manager just because there were two floors. And he said, people think that I cannot run around, climb so many times, and they said, you just manage one floor. And then that was his reason for getting surgery. And when we operated, he even though he was the best performer, but just because people were judging him because of his weight, they were not promoting him. So And also, Hmm. I'm sorry, this is also very common in young girls. जो college going girls होती हैं, इनमें बहुत common है, and 90% of them are suffering from depression which is undiagnosed because of obesity. बट हम सब लोग जो लॉकडाउन हैं, डॉक्टर अमित पटेल हैं, विवेक मुदगल जी हैं, हमारे ग्लोबल सिटीजन सर, भास्कर कुमार जी, बिमला कपूर मैडम, आई थिंक वन टेक होम मैसेज वी गेट फ्रॉम डॉक्टर अभिषेक इज के हम भी तो सोसाइटी का हिस्सा हैं, बल्कि हम ही तो सोसाइटी हैं. तो शुरुआत अपने आप से करें. सो डॉक्टर अभिषेक, इन सिंगल लाइन, हाउ शुड वी ट्रीट पीपल लिविंग विद ओबेसिटी, द पीपल हु लिव अराउंड अस? The best thing would be put ourselves in their shoes and imagine and see the world from their perspective. और फिर एक बैरो बुलिंग या बॉडी शेमिंग जो हम अपने दिमाग में लाते हैं, अपने ज़हन में, और हम अपने बोल में, अपने लफ्जों में कभी कभी ले आते हैं, वो हमें बंद कर देना चाहिए. डॉक्टर अमित पटेल shares a case story. 127 kg of weight, young gentleman, around 35-40. हाइट नहीं बताई अमित ने अपनी, बट सर्जरी करें या पहले डाइट एंड एक्सरसाइज करें? सो यू हैव टॉक्ड ऑफ द इंडिकेशंस. मैं हूं BMI 32.5, तो मैं आता हूं आपके पास, आप तुरंत ऑपरेट कर देंगे या कोई थेरेप्यूटिक ट्रायल देते हैं पहले? क्या करते हैं पहले? सर, इसलिए यूजुअली जो हम हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं, मुझ तक जब पेशेंट पहुंचता है तब तक वो सब कुछ हार चुका होता है. वो ऑलरेडी डाइट प्लान ट्राई कर चुका होता है, वो ऑलरेडी बहुत सारे वेट लॉस पाउडर ट्राई कर चुका होता है. तो जब अंत में कोई चीज नहीं बचती है तो मैं आखिरी एक उनके लिए खड़ी होता हूं. तो इसलिए मेरे पास जब पेशेंट पहुंचता है तब तक वो सब ट्राई कर चुका है. बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपने यंग लड़कियों को लेकर आते हैं या यंग लड़कों को लेकर आते हैं, क्योंकि उनका कंसर्न रहता है कि लड़की की शादी कैसे होगी अगर मोटापा है तो.
तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस इंसान को मोटापा है क्या वो भी उतना ही वेट लॉस के लिए इंक्लाइन है या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माँ बाप जबरदस्ती लेकर आए हैं बच्चे को और बच्चे में कोई मोटिवेशन नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज इलाज नहीं काम करेगी उसके ऊपर। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको मोटिवेशन की कमी होती है, हम लोग सबसे पहले उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं आज इस समय और आपका फ्यूचर क्या हो सकता है अगर आप अपने आप की लाइफस्टाइल नहीं सुधारते। बिकॉज यंग लोगों में यूजुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन definitely help. The problem is when they crossed a certain limit, when the weight margin is too high and they have polycystic ovary or other metabolic fatty liver disease, then we tell them that, okay, these are the two options. You try lifestyle modification. If it doesn't work, then you come back after 3 months. So this is how we manage. But अगर ऐसा किसी भी मरीज में लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी डिप्रेशन में है या इस पे वेट लॉस फेलियर हो चुका है पहले, तब हम उसकी डिटेल्ड साइकियाट्रिक हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है। तो बेसिकली जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ओबेसिटी क्यों हुई ये जानने के पीछे, और फिर हम एक एक स्टेप में वो चीजों को ट्रीट करते हैं और उसके बेनिफिट्स देखने के बाद आखिरी में जब कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या कोई चीज काम नहीं कर रही है तब फिर हम उसको 3 महीने के बाद हम उसको सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। So, Dr. Abhishek has spoken to us about the indications for surgery: a BMI of more than 35, a BMI of more than 35 plus metabolic disease. He has also talked to us about the fact कि पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना है एंड पेशेंट का साइकोलॉजिकल मेकअप देखना है. Dr. Shubhlata Chitwal madam is logged in with us, and also Dr. Noor Aga Danish. He's from Afghanistan, so an international viewership for you today, Dr. Abhishek. थैंक यू And सो मच। Ravi ji भी हैं हमारे साथ. तो अब सब ये पूछ रहे हैं कि you've talked of the indications, but are there contraindications? कोई ऐसी disease, कोई ऐसी बीमारी, any condition where you will say that no, we cannot operate, we do not want to operate, this may be harmful for you. एंड फिर ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, सम ऑफ देम माइट बी परमानेंट कि हम कभी भी ऑपरेट नहीं करेंगे, एंड अदर्स माइट बी टेम्पररी कि आप इसको ठीक कर दो, मे बी अपने शुगर को, अपने थायराइड को ठीक कर दें एंड देन वील ऑपरेट. सो अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस प्लीज. सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो 2-3 है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर साइकियाट्रिक इलनेस। अगर इंसान का इंसाइट ही नहीं है, सिजोफ्रेनिया है या कोई मेजर डिप्रेशन है, तो सबसे पहले हमें उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे मरीज जिनको हमने ऑपरेट किया अगर उनका इंसाइट नहीं है तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो ये तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मेजर साइकियाट्रिक इलनेस। दूसरा है ऑब्वियसली इफ पेशेंट इज गोइंग थ्रू एनी क्रॉनिक इलनेस लाइक कैंसर और अदर प्रॉब्लम्स. Usually cancer patients will not have obesity, usually they have weight loss, but during the beginning if somebody is obese and develop some kind of cancer, then obviously it's a contraindication. और जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे हमने बोला कि मोस्टली हमारे पेशेंट्स में हम जो देखते हैं फैटी लीवर, and if it has progressed to NASH and if they have developed ascites, so any patient with Child-Pugh criteria more than B, we don't operate. Anybody who has ascites, we don't operate on them because it can lead to rapid liver failure. So that is a relative contraindication. There are few relative contraindications specific to surgery. जैसे जिन मरीजों को जैसे कुछ कंट्रीज में जहां पर CS स्टमक बहुत कॉमन है, जैसे जापान एंड साउथ कोरिया वेयर दे कंज्यूम लॉट ऑफ स्मोक्ड फूड, उन जगहों पर हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी नहीं करते बिकॉज गैस्ट्रिक सर्विलेंस वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने गैस्ट्रिक बाईपास कर दिया और फ्यूचर में उसको CS स्टमक हो गया तो वो कभी भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज इंडोस्कोप वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। दूसरा, किसी मरीज को अगर हम जो रिफ्लक्स की बात करते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, अगर गर्ड उसको मोर देन B है तो हम ऐसे पेशेंट्स में गैस्ट्रिक स्लीव नहीं करते हैं बिकॉज गैस्ट्रिक स्लीव करने के बाद में जो स्टमक का जो इंट्रालुमिनर प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उससे रिफ्लक्स बढ़ सकता है। तो ऐसे मरीजों में हम स्लीव नहीं करते, ऐसे मरीजों में हम गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं। सो ये स्पेसिफिक टू प्रोसीजर भी होता है। So very simple messages again and very easy for all of us to understand. अगर आपको कोई मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, कैंसर या कोई सीवियर लिवर डिजीज, तो ज्यादातर कोई भी बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं की जाएगी. और अगर कुछ एक बीमारियां हैं जैसे
स्टमक के कैंसर का रिस्क, या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बहुत सिवियर, तो कुछ एक तरह की बैरियाट्रिक सर्जरीज नहीं की जाएंगी, पर बाकी तरह की बैरियाट्रिक सर्जरी की जा सकती है। जी। Dr. Noor Aga has a medical question for you, and he says, have you used Orlistat? What is the success rate, and what are the complications that we may encounter? See, Orlistat, when it came to the market, it was considered wonder drug. It was very promising. We still use it. But the problem with Orlistat is the moment you stop using this drug, basically Orlistat causes fat malabsorption. And sometimes when we stop Orlistat, patients suddenly regain weight. So we don't want any such treatment where once we withdraw the treatment, there is a weight regain, and that too uh, extra pounds. So ये जो medication है, but right now semaglutide is coming up, which is a very promising drug. But again, long term में इनका effect क्या होने वाला है, ये हम में से किसी को भी नहीं पता है. So Orlistat, I have also used a little bit, but we use because of something called TINA. There is no alternative TINA effect की वजह से. Modest effect है, not very impressive effects, and it will, if you use it in the proper doses, it will cause diarrhea, flatulence, yellow colored Yes. stool. Some people complain, but it is a nice way of motivating people to go off heavy fat meals. क्योंकि जब भी ऑर्लिस्टैट लिया जाएगा along with parathas or butter or all the tasty things, murg musallam, shahi paneer, all the stuff with lots of butter and ghee, then you will get more of diarrhea and more of flatulence. So, you can use it to sort of motivate the patient to go off this diet. But from a very long-term perspective, it's not all that effective. Dr. Nallal Sharda sir shares a very ancient treatment. And Dr. Sharda sir, I would like to say that my wife is very fond of this. And this is her go-to therapy for weight loss. So he says manual grinding stone. Do you recommend it to your patients? And what is the differential impact on central obesity versus overall obesity? So I didn't get what you mean by manual grinding. चक्की जिसको हम बोलते चक्की, थे. यस यस, हिंदी वाली चक्की. अभिषेक हमारा अच्छा मध्य अच्छा. प्रदेश का है, चक्की, यस. डॉक्टर So शाह हमारा इंटरनेशनल है, पाकिस्तान प्लस इंडिया. सो आटा चक्की जिसको हम पुराने जमाने में देखते थे, जो बाबा रामदेव भी बहुत प्रमोट करते हैं, बट आई डोंट थिंक आज के जमाने में कोई घर में अपने बैठ के किसी के पास इतना समय है कि वो चक्की में गेहूं पीसेगा. बट अगर पीस रहा होगा तो 100% उसको कभी ओबेसिटी नहीं होगी, ये बात तो पक्की है. और दूसरा सवाल उन्होंने एक जो पूछा था सेंट्रल ओबेसिटी से रिलेटेड, तो अगर हम देखिए, जो यूरोपियन लोग होते हैं उनकी ओबेसिटी और हमारी ओबेसिटी में बहुत फर्क है. वो लोग ओवरऑल मोटे होते हैं, और हम जो इंडियंस हैं या जो हम एशियंस हैं, हमारी ओबेसिटी जिसको एंड्रॉइड या एप्पल शेप ओबेसिटी बोलते हैं, विच इज मोर ऑफ विजरल फैट. तो ये जो विजरल फैट है, यही इंसुलिन रेजिस्टेंस और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती हैं उसके पीछे. ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जो इंडियन ओबेसिटी है, एशियन ओबेसिटी है, दैट्स व्हाई वी आर मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज इवन एट लो बीएमआई कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन. ये सबको बताना चाहूंगा, वेदर वी आर लॉग्ड इन फ्रॉम इंडिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, एट अ लोअर बॉडी मास इंडेक्स, हमारे मेटाबॉलिक, मस्कुलोस्केलेटल, मूड एंड मैटरनिटी रिलेटेड इश्यूज बढ़ जाते हैं. बल्कि बिकॉज वी लिव इन रिसोर्स चैलेंज सेटिंग्स, हमारे मॉनिटरी इश्यूज भी बढ़ जाते हैं. लेट्स जस्ट टेक सब एग्जांपल्स जो डॉक्टर अभिषेक ने कहा. अगर आपका बीएमआई इतना ज्यादा नहीं है, मान लो 24 या 25 है, विच इज नॉर्मल फॉर एन यूरोपियन और फॉर एन अमेरिकन, बट हमारे लिए वो हाई है, मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ेगी, मस्कुलोस्केलेटल या मैकेनिकल डिजीज बढ़ेगी, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, नीज की जॉइंट, नीज में दर्द, जॉइंट पेन्स, मूड डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बॉडी शेमिंग, बॉडी सेंसिटिविटी भी ज्यादा है, बैरो बुलिंग इज मोर हेयर, मॉनिटरी इश्यूज. अगर आप एल साइज शर्ट खरीदेंगे तो वो 500 रुपए की है, बट डबल एक्सएल लेने जाओ तो सीधा 750 रुपए मांगते हैं. दैट इज ऑल्सो बैरो बुलिंग, इजंट इट अभिषेक? यस यस. या इट्स नॉट फेयर. हाँ. एंड देन एम फॉर मैटर्निटी की बात कर रहे थे, बट पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं.
Another M that you can add just to remember is M for makeup, which means that cosmetic issues come up. बट डॉक्टर अभिषेक, वुड यू वांट टू टॉक मोर अबाउट दिस? अब पेशेंट आ गया बीएमआई के साथ 35 या 32.5, हमने काउंसलिंग की, हमने सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस रूल आउट कर दी, नाउ वी आर रेडी टू डू अ सर्जरी। तो सारी बैरिएट्रिक सर्जरी सेम होती हैं क्या, या अलग अलग तरह की होती हैं? नहीं, वो बहुत अच्छा सवाल है सर। बेरियाट्रिक सर्जरी से हमने सुना होगा आपने कि जब हर्निया सर्जरी आई थी कई सालों पहले, तो कई टाइप से की जाती थी। कुछ लोग प्रमोट करते थे कि मेश नहीं लगाना, कुछ लोग बोलते थे ये रिपेयर, कुछ लोग बोलते थे अलग। हर सर्जन ने अपना अपना एक नाम दे दिया उस सर्जरी को। Why there were too many surgeries? Because none of them were perfect. They were customized depending on the type of hernia and type of patient. The same rule applies to bariatric surgery also. So there are different types of bariatric surgery, but I would like to name few. Sleeve gastrectomy, which is also called gastric sleeve surgery. ये अभी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सर्जरी हो रही है तो ये गैस्ट्रिक स्लीव है। उसके बाद एक सर्जरी है जिसका नाम आता है रोux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें हम स्टमक का एक छोटा पाउच बनाते हैं और उसमें इंटेस्टाइन को अटैच करते हैं। ये दूसरे नंबर पर है, पर ये गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी कहलाती है। तीसरी सर्जरी एक जिसको वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं, जो आपके नॉर्थ में बहुत फेमस है, खास करके पंजाब में और हरियाणा में। और ये जो सर्जरी है ये मॉडिफिकेशन है मिनी गैस्ट्रिक रोux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास का। रोux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास में रू लूप बनाते हैं हम, जबकि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में एक लूप ही जाता है जो स्टमक को अटैच हो जाता है। तो मेरा ये और बहुत सारे नए प्रोसीजर्स भी हैं, जिसको जैसे एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी विद आइलेल इंटरपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, या आइलेल ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, विच इज स्पेसिफिकली फॉर डायबिटीज। एक सर्जरी होती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी विद लूप डियोडेनोजेजुनल बाईपास, जिसमें हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करते हैं और D1 और D2 जंक्शन जो है डियोडेनम का, वहां से डिस्कनेक्ट करके एक लूप स्मॉल इंटेस्टाइन का अटैच करते हैं। बट ये बहुत एडवांस प्रोसीजर है और ये हर सेंटर में नहीं होती है। जो कॉमनेस्ट सर्जरी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जो ज्यादा परफॉर्म होती है, लेकिन स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मरीजों में 2 या 3 साल के बाद में वेट रीगेन देखने मिलता है। सेम चीज किसी भी प्रोसीजर के साथ हो सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पेशेंट से हम बात करते हैं तो उनको कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमने डेवलप नहीं करनी चाहिए। इंडियन पेशेंट्स ऐसे हैं कि वो आकर बोलते हैं कि सर मैं तो नहीं बदलूंगा, आप सर्जरी कर दो बस। तो ये बहुत गलत एटीट्यूड है। सर मैं तो पूरा एक तंदूरी मुर्गा खाऊंगा और मैं रोज शाम में ड्रिंक भी करूंगा, पर मुझे दुबला भी होना है। तो ऐसे ऐसे जो मरीज होते हैं ये बड़े चैलेंजिंग होते हैं, बिकॉज ये सुधरना नहीं चाहते। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जब वेट रिगेन होता है तो इससे सर्जरी का नाम भी खराब होता है और सर्जन का नाम भी खराब होता है, और उसके रिजल्ट भी जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो ऐसा कई बार है क्या कि आप पेशेंट को रिफ्यूज कर देते हैं, भाई साहब ये बेटर है, मतलब मेरा काम है सर्जरी करना, बट आप में बिकॉज ऑफ द वे यू आर बिहेविंग या व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस आर, इट इज बेटर दैट आई डू नॉट ऑपरेट? हैज दिस हैपेंड? Yes, it has happened with me. But unfortunately, these patients went to somebody else and got operated. So, but what we are learning is कि different types of surgeries हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, तो पहले तो बात की जाएगी कि do you need bariatric surgery or not, and then you have to decide the type of surgery. So, just in simple words, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर चटवाल मैडम पूछ रही हैं, 3-4 तरह के पेशेंट्स आपको डिस्क्राइब करते हैं, इनमें कैसी सर्जरी चाहिए होगी? A young boy or girl, age 25, अभी 75 साल बचे हैं लाइफ के। A 40-year-old person with newly diagnosed diabetes, 50-60 साल बचे हैं डायबिटीज के लाइफ के, मगर हम डायबिटीज पे नियंत्रण पाना चाहते हैं, वी वांट टू कंट्रोल डायबिटीज, और हमें बाकी चीजों का भी डर है, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, एंड देन मे बी अ 60-year-old जेंटलमैन। सो इनमें किस तरह की सर्जरी ऑफर करेंगे आप इन तीनों को? सर जो यंग लोग जो होते हैं उनमें यूजुअली मैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म करता हूँ। उसका कारण ये है कि उनकी लाइफ अभी बहुत बाकी है और हमको कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, खास करके यंग गर्ल्स जिनकी अभी शादी होनी बाकी है या फैमिली कंप्लीट होना बाकी है। तो ऐसे जो मरीज होते हैं यूजुअली मैं उनमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी प्रेफर करता हूँ। उसका कारण मैंने बताया कि न्यूट्रिशनल इश्यूज कम रहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के साथ।
और आपने जो एक बात बताई दूसरी, जो 40 ईयर ओल्ड मेल विथ रिसेंट डायग्नोस डायबिटीज, उस पे भी डिपेंड करता है सर। वो बहुत ही थिन लाइन है। अगर पेशेंट बहुत मोटिवेटेड है, बीएमआई बहुत ज्यादा नहीं है, एंड दैट पर्सन नोज कि शुगर उसके लिए खराब है, then depending on other factors we can either go for a sleeve gastrectomy with a proximal jejunal bypass or a Roux-en-Y gastric bypass. तीसरा जो है, ऐसे मरीज जिनमें हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आपने बोला एक 50 या 60 साल के इंसान है जिनको आर्थराइटिस भी हो गया है, और हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ज्यादा चल फिर सके, एक्सरसाइज कर सके, तो ऐसे पेशेंट्स में मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास दोनों भी इफेक्टिव है, बिकॉज माल एब्जॉर्प्शन के थ्रू हम वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें न्यूट्रिशनल, खास करके प्रोटीन डिफिशियंसी होने का बहुत डर रहता है, तो इसलिए इन पेशेंट्स में हमको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलता उनको कि आप नॉनवेज खाना शुरू कर दो, बट मैं उनको बताता हूँ कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपके लाइफ में क्या होने चाहिए जो हाई प्रोटीन होंगे वेजिटेरियन डाइट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी ये है, सर्जरी इज जस्ट 50% job. The rest 50% includes the pre-operative counseling and the post-operative follow-up and re-counseling and re-education. तो एक ABCDE फार्मूला होता है जिसके बारे में बात करते हैं, पर अभी अभी डॉक्टर अभिषेक ने एक नया ABCDE फार्मूला हमारे लिए बना दिया। The ABCDE which will help him decide what kind of surgery to offer us. A is for age and age expectancy. हम कितने साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, जो महिला या आदमी, वो जिंदा रहेंगे। B इज फॉर बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी वेट, कितना ज्यादा है, BMI 40 है, 35 है, 33 है। C इज फॉर कोमॉर्बिड कंडीशंस, मोटापा तो है ही है, ओबेसिटी है, बट ओबेसिटी के अलावा क्या क्या है और क्या क्या हम मैनेज करना चाह रहे हैं, क्या क्या हम सोच रहे हैं कि हम क्योर कर सकते हैं। सो C फॉर कोमॉर्बिडिटी एंड C फॉर चांसेस ऑफ क्योर। D इज फॉर डाइट, आपके पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में is he going to follow your advice? Is he going to take a lot of paneer, lot of curd, lot of chane rajma and high protein dals? The highest protein dal in India is something called bhat ki dal. ये उत्तराखंड से आती है डॉक्टर अभिषेक, and this is also known as black soybean. Yes. So ABCD and E is for energy, enthusiasm, education. पेशेंट कितना एजुकेटेड है, कितना एंथुजियास्टिक है, कितनी एक्सरसाइज कर पाएगा। So with this ABCD formula, very easily now, Dr. Abhishek will be able to mix and match, make permutations and combinations for us and tell us कि ऑपरेट करना है कि नहीं करना। डॉक्टर रमेशपाल सिंह पवार सर पूछ रहे हैं, 72-year-old gentleman, so A for age आ गया, body mass and body weight is 105 kg with a height of 5 feet 8 inches, 170 centimeters height, 105 kg weight. C is for comorbid conditions, very well controlled diabetes, HbA1c is 6.5. D is for diet, डॉक्टर पवार सर D for diet नहीं बताई। E is for exercise, सर enthusiastic तो है हमारे, सर is our evergreen hero। तो इसमें at age 72 do we need to do bariatric surgery? सर इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो बोलती हैं कि less than 18 years and more than 65 years, it is not recommended to go for bariatric surgery. But in selected circumstances, if that obesity is affecting quality of life and if it is affecting somebody emotionally, because ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस एज में कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है मैं कि किसी पे डिपेंडेंट बनूं। तो डिपेंडेंसी, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने खुद से उठ के टॉयलेट जा सकूं, और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब इतना है कि मैं मोबाइल रहूं और अपना टेक केयर कर सकूं। तो उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आई हैव ऑपरेटेड पेशेंट ऑफ अराउंड 70 years also, but then how, see, motivation and family enthusiasm and family support is very important. Yes, at this age the safest surgery would be a sleeve gastrectomy, because that will, so now the target is not the weight loss, the target is to improve quality of life. He might lose only some pounds, but that will improve quality of life.
एंड आपने एक एफ भी जोड़ दिया हमारे ABCD फॉर्मूला में, एफ इज फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फेलोशिप। यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर अभिषेक जो हमें बताना चाह रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल, सर अगर आप पैराफ्रेज करें, तो जब आप बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, यू आर डूइंग इट फॉर टू रीजंस। वन इज फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट, मे बी कॉस्मेटिक इफेक्ट, you want to look good, maybe your personal, your professional, or your social functioning is impaired because आपका वेट ज्यादा है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने नहीं जा सकते, या वो नाट देती है, मना कर देती है, शी सेज आई विल फाइंड समबडी लाइक डॉक्टर अभिषेक टू गो विद, राइट? या प्रोफेशनली, जैसे वो ताइवान वाले लड़के की बात हुई, बिकॉज ऑफ योर वेट आपको प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रहा, यू आर नॉट गेटिंग द प्रमोशन। या साइकोलॉजिकल, सोशल, खुद ही आप अपसेट होना शुरू हो गए हैं। सो दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म। एंड द लॉन्ग टर्म इज, लॉन्ग टर्म में by doing bariatric surgery we will control your weight and we will ensure that you have better metabolic, better musculoskeletal, better mood and better menstruation और maternity related health। तो दो चीजें हो गई। तो 70 इयर्स पे बेसिकली वी विल फोकस अबाउट द शॉर्ट टर्म इंडिकेशंस, यदि वो इंडिकेशंस हैं तो सर्जरी होनी चाहिए। प्रतीक पावा जी पूछते हैं, 35-year-old जेंटलमैन विद द हाइट ऑफ 5 feet 4 inches एंड 130 kg वेट, तो इसका रफली कितना बनेगा अभिषेक, BMI पावा साहब का? 160 Yeah, just a minute. सेंटीमीटर। I can calculate it. There are a lot of apps available on Google Play Store which can tell us about the weight. Just a minute. Hold on. एंड प्रतीक, जब तक डॉक्टर साहब कैलकुलेट कर रहे हैं, 160 सेंटीमीटर्स आपकी हाइट है, -100 इज इक्वल टू 60, तो रफली 60 kg इज द आइडियल वेट। तो मतलब सर काफी ज्यादा एज हाई है। एज एज 35, कितना है सर? 35। जी हाँ। 35, और हाइट है? 5 feet 4 inches। ओके, 5 feet 4 inches। एंड वेट बताया सर इन्होंने? 130। सर इनका BMI है 49.2। Yeah, Pratik also did that for us. Thanks, Pratik. So, is surgery indicated? इस पे तो मेडिकल दिमाग भी yes बोल देगा प्रतीक, but which Yes. surgery is indicated and what are the extra things that Pava Sahab should be mindful of? सर जब BMI 50 के ऊपर हो जाता है तो हम इसको सुपर ओबेसिटी बोलते हैं, तो ये एकदम बॉर्डर पे हैं। अगर 49.2 इनका BMI है, सो आज नहीं तो कल, एंड 100% अगर ये अभी तक डायबिटिक नहीं हुए हैं तो 100% इनको प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होने ही वाला है। ये तो हम बिना चेक किए भी बोल सकते हैं। तो 100% अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हम सबको पता है कि नेचुरल हिस्ट्री यही है, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस फॉलोड बाय डायबिटीज। सो यही राइट टाइम है। अगर डायबिटीज अभी तक नहीं हुआ है तो देन ही शुड सीरियसली थिंक अबाउट अ प्रोसीजर, बिकॉज यहाँ मार्जिन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल। ओरिजिनल BMI का 25 होना चाहिए था, इनका ऑलमोस्ट 50 है। सो ऑलमोस्ट ही इज रीचिंग डबल व्हाट ही इज सपोज्ड टू बी। सो ऐसे ऐसे मरीजों में सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है गैस्ट्रिक बाईपास। दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। Many other people logged in with us. साधना पालीवाल जी हैं और विपिन बंडूला जी has joined us. But ये प्रतीक जी और डॉक्टर अमित ये बोल रहे हैं, मैं सर्जरी करवाना चाहता हूँ, my family says क्या जरूरत है करवाने की, you are only 35 years old. So a question is it a 35-year-old gentleman who does not have diabetes as of today versus a 55-year-old lady who has already got diabetes? इनमें से ज्यादा जरूरत किसको है बैरियाट्रिक सर्जरी की? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं इसका एग्जांपल हमेशा एक सरल तरीके से देता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ, देखिए जो गंगा नदी है वो जहां जहां से निकलती है वहां दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग होते हैं जिनको पता है मानसून आ रहा है और अब गंगा जी ऊपर चढ़ने वाली हैं, तो वो लोग जो नदी के किनारे रहते हैं वो उस दिन का इंतजार नहीं करते जब बाढ़ आएगी और तब हम सामान लेकर आधी रात में भागेंगे। वो लोग होते हैं कि जिनको पता है हाँ मानसून आ रहा है, चलो हमको ऊपर जाने की जरूरत है। और दूसरे लोग होते हैं जो
टेकन फॉर ग्रांटेड करते नहीं, अभी तो पिछले कई सालों से बाढ़ आई नहीं, हमारे घर तक तो कभी पानी आता नहीं, हमने क्यों प्रिकॉशन लेना। तो ऐसी स्थिति में जो इंसान जिसका BMI 35 है पर अभी तक डायबिटीज हुआ नहीं है, उसने उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब डायबिटीज हो जाएगी और तब मैं जाके इसके बारे में सोचूंगा। दूसरी चीज ये है, मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे मरीज आते हैं जो मुझे बोलते हैं सर काउंसलिंग हो जाती है, सब हो जाती है, बट घर वाले बोलते हैं अरे मोटापा ही तो है, उसके लिए क्यों सर्जरी करना है। क्योंकि जो इंसान ऐसा बोल रहा है वो मोटापे से ग्रसित नहीं है, तो उसके लिए बड़ा आसान है बोलना अरे मोटापे के लिए क्यों सर्जरी करा रहे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिसीजन हमेशा पेशेंट ने लेना चाहिए और फैमिली ने सपोर्ट करना चाहिए। बट बहुत बार मरीज आता है, घर वापस जाता है, घर वाले डरा देते हैं अरे क्यों सर्जरी करा रहे हो, और वो फिर नहीं आता। वही मरीज 6 महीने बाद मेरे पास वापस आता है और बोलता है सर अब मुझे शुगर हो गई है और अब मुझे सर्जरी करानी है। तो मैं उनको बोलता हूँ जो सर्जरी का इफेक्ट 6 महीने पहले आ सकता था वो अब असर उतना नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको डायबिटीज आ गई है विच इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर। तो इसलिए डायबिटीज आए, दूसरे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आए, स्लीप एपनिया बढ़ जाए, उसके पहले ही हमको प्रिकॉशन, वी ऑलरेडी नो स्टिच एट टाइम सेव्स 9, ये कहावत हम सबने सुनी हुई है। आपने गंगा नदी का एग्जाम्पल लिया, तो ये तो एक्चुअली ट्रू है। इट्स ट्रू फॉर डायबिटीज, इट इज ट्रू फॉर ओबेसिटी, इट इज ट्रू फॉर एवरी क्रॉनिक डिजीज। अब हमारे कल्चर में गंगा जल को अमृत माना जाता है। गंगा जल अगर समय पे लें तो वो अमृत है। अगर आप बैरियाट्रिक सर्जरी या इंसुलिन या डायबिटीज की दवाई या ब्लड प्रेशर की दवाई समय पे लें तो वो अमृत है। मगर अगर आप उसको एंड तक छोड़ दें और आपके घर वाले बोले चलो जी नीचे फर्श पे लिटाओ, अब गंगा जल मुंह में डालो, तो देन इट इज नॉट अमृत, इट इज जस्ट अ साइन दैट एवरीबडी हैज गिवन अप ऑन यू। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, द पॉइंट इज के जो कल करे सो आज, आज करे सो अब, especially if you are dealing with chronic disease and disease that can be managed. I know that it is difficult to motivate oneself, it is difficult to motivate family and friends, और सब लोग खूब सारी बीच में टांगे डारे होते हैं। मगर देखो ना, अगर आपने अपना कपड़ा रफू करवाना है तो आप दर्जी के पास जाएंगे, जूते वाले के पास तो नहीं जाएंगे ना। दोनों के पास सुई धागा। हेलो 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 Yeah, okay, I'm back. Sorry, there was a technical glitch. तो सर्जरी करवानी है तो वो समय पे होनी चाहिए, बिफोर द कॉम्प्लिकेशंस अकर। डायबिटीज का ये भी याद रखें कि डायबिटीज का मतलब हाई शुगर, तो वो शुगर खून में घूमती है, खून पूरी बॉडी में फैलता है, खून की नसें होती हैं, खून की नसों की जो अंदर की लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो जब डायबिटीज हो जाती है और वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में घूमना शुरू करता है, एंडोथीलियम के लिए वो पॉइजन है। तो इट इज जस्ट लाइक यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। आप खांसी करते हैं, आप परेशान होते हैं, बट जस्ट बिकॉज आपका एंडोथीलियम चुपचाप कंप्लेंट नहीं कर रहा अंटिल बिल्कुल ही बात बहुत बिगड़ जाती है, इट डजंट मीन कि आप एंडोथीलियम को पॉइजन करते रहें। एंड इफ योर बीएमआई इज हाई 32.5 एंड अबव, तो एक्चुअली यू शुड गो एंड मीट अ सर्जन। Many other questions, a medical question is from Mohammed Inam ji. हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में सोडियम एंड वाटर रिटेंशन वैसे ही हो रहा है मोहम्मद, तो इंसुलिन अगर बहुत हाई डोज में दोगे थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, बट हार्ट फेलियर में इट इज इंसुलिन विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ना डॉक्टर साहब सर्जरी करने लगे और सारी टैबलेट्स जो हैं उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, तो वी नीड टू मैनेज द हार्ट फेलियर। The two drugs of choice are insulin and another class of drugs known as SGLT2 inhibitors. Vipin ji has a question for you, Dr. Abhishek. That is, what is liposuction, and in whom is liposuction indicated? सो बहुत लाइपोसक्शन जो है ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग बेरियाट्रिक सर्जरी को भी कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते थे, और इस वजह से इतने सालों से इंडियन रेगुलेटरी जो है इंश्योरेंस के लिए IRDAI जिसको हम बोलते हैं,
वो बेरियाट्रिक सर्जरी को इंश्योरेंस में कवरेज नहीं देती थी, ये बोलते हुए कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। पिछले 10 सालों से हम सारे बेरियाट्रिक सर्जन्स इस बात को लेके हमने बहुत मीटिंग्स की, और हमने इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मीटिंग की, हमने कोलैबोरेट करके उनको समझाया कि ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, दिस इज अ मेटाबॉलिक प्रोसीजर, and that is why now IRDA has approved from last October 2020 bariatric surgery is covered under insurance because it is not a cosmetic procedure, whereas liposuction is a procedure in which बेसिकली लाइपो का मतलब है फैट और सक्शन का मतलब है उसको खींचना। सो ये जो प्रोसीजर होता है इसमें बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती है, और ये नीडल को हम जहां जहां फैट होता है वहां उसको पंक्चर करते हैं, फैट को नेक्रोस करते हैं और उस फैट को सक कर लेते हैं। लेकिन लाइपोसक्शन के एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है, मान लीजिए किसी लड़की की शादी होने वाली है और उसको कुछ एक ड्रेस है जो वो चाहती है अच्छे से फिट आए, तो वो लाइपोसक्शन के लिए आइडियल कैंडिडेट है। लेकिन आप लाइपोसक्शन से 20 किलो और 30 किलो का वेट लॉस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये बहुत अनसाइंटिफिक है, बिकॉज जो बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि आपने अगर 4 फैट सेल्स निकाले तो वो बॉडी मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि वो उसको मल्टीप्लाई करता है। तो ये ऐसी कहानी है कि आपने एक मग्गा पानी बकेट से निकाला और उसमें 2 मग्गे पानी जमा हो गए फिर से। सो लाइपोसक्शन इज नॉट ए प्रोसीजर फॉर वेट लॉस, लाइपोसक्शन इज अ प्रोसीजर फॉर बॉडी स्कल्पचर। एंड अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह पे, मे बी वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, मे बी द हिप्स, द ब्रेस्ट, द एब्डोमेन, वहां पे आपको वेट कम करना है या आपको मोटापा कम करना है एक पर्टिकुलर एरिया में, देन मे बी लाइपोसक्शन विल हेल्प, बट इट विल हैव नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट यस, किसी तरह का भी। इवन जो कॉस्मेटिक वाला है वो भी लॉन्ग टर्म नहीं रहने लगा। जी हाँ। आपने इंश्योरेंस की बात की तो एक क्वेश्चन आ रहा है पावा साहब से भी और बाकियों से भी, व्हाट इज द रफ कॉस्ट? ऑफ कोर्स आई नो यू कांट टॉक अबाउट द होल ऑफ इंडिया, बट जस्ट कैन यू गिव अस सम बॉलपार्क फिगर्स मे बी फॉर हैदराबाद सिटी? सो बेरियाट्रिक सर्जरी में जो सबसे एक्सपेंसिव जो पार्ट होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें जो हम स्टेपलर्स यूज करते हैं जो स्टमक को कट करना या जॉइंट बनाने के लिए, सो दीज सर्जिकल स्टेपलर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, and the whole cost depends on the type of stapler which we are using. There are countries which are making cheaper staplers, but they don't have any R&D backup. Whereas European and American companies, they have a strong backup and R&D of particular staplers. So it depends on the cost of stapler. So usually जो reusable staplers हम use करते हैं plus gun जो fire use करते हैं, उसका cost 1.5 से 2 लाख रुपए तक रहता है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका खर्चा 3 से 4 लाख के बीच में आना चाहिए सब मिलाकर। एक और क्वेश्चन, एक तो डॉक्टर नंदलाल शारदा सर शेयर कर रहे हैं, सर इज फ्रॉम अहमदाबाद, लाइक आई सेड 10 years ago he had also suggested in United Insurance to pass a claim for bariatric surgery. So thank you sir for supporting good health. आपने बात की कि even after bariatric surgery we need family support, we need nutritional support. So Dr. R.S. Chaudhary का question है, what are the long term complications and maybe the short term surgical complications? Of course किसी surgery के बाद भी दिक्कत आ सकती है, but is there something that you see more often after bariatric surgery? So maybe Dr. Saab, if you can answer this question from a surgeon's perspective, Dr. R.S. Chaudhary sir senior surgeon है, and also from a public perspective कि मुझे भी समझ आ जाए। सबसे जो कॉमन इफेक्ट जो देखने मिलता है बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद है वो है फीलिंग ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को अगर आपने देखा है जो 1 या 2 साल का है, अगर आप उसको ओवर फीड करते हो तो वो प्यूक करता है, क्योंकि उसको उसके शरीर को उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। द सेम रूल अप्लाइज टू somebody who has undergone surgery, because सर्जरी के इमीडिएटली बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ब्रेन में या जो गट हार्मोन चेंज होते हैं, तो उसको बॉडी को अडॉप्ट होने में समय लगता है। तो मान लीजिए कि जो ब्रेन है उसको तो यही पता है कि कल तक मैं इतना 4 रोटी खाता था, मैं इतनी दाल खाता था, मैं इतना चिकन खा लेता था, लेकिन आज अचानक मैं नहीं खा पा रहा हूँ। तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ इसको ट्रेन योर ब्रेन। सो आई टेल देम, talk to yourself, tell yourself that okay, I have undergone surgery,
my capacity has come down, I cannot consume more than this. So जो पेशेंट्स ये बात जल्दी समझते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, बट कुछ मरीजों को ये कुछ दिनों तक प्रॉब्लम होती है, नौशिया या वॉमिटिंग सेंसेशन विच इवेंचुअली सबसाइड. दूसरी चीज है जो हम इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की आपने बात की, जिसको हम सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं, जिसको कुछ मरीजों में लेस देन 1% पेशेंट देयर कैन बी ए लीक. So if one part of the stapler does not heal, or if there is any ischemia, usually smokers में हम देखते हैं, and if it does not heal, there can be leak, but it can be managed endoscopically or laparoscopically. लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में यूजली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉमन है, चाहे वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हो या रूएन गैस्ट्रिक बाईपास हो, बट बाईपास में ज्यादा देखने मिलता है. दूसरा है विटामिन B12 डिफिशियंसी, जो रूएन गैस्ट्रिक बाईपास में ज्यादा देखने मिलती है. इसलिए हमारे हर मरीज को हम बेरियाट्रिक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देने को बोलते हैं. तो ओवर द काउंटर जो मल्टीविटामिन मिलती हैं वो एडिक्वेट नहीं होती हैं, इसलिए स्पेसिफिकली बेरियाट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स को कुछ जो न्यूट्रिशनल सब्स्टिट्यूट्स हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर देम है, वो लेने चाहिए. So, but overall, all these can be controlled if you have a good follow-up. And but ये है कि you Yes. should be in touch with your surgeon and with your doctor after the surgery as well. Yes. So you will not Almost believe I'm still in touch with my first patient. Sometimes patient don't reach us, we try to reach them. उनकी सर्जरी कब हुई थी? हेलो, उनकी सर्जरी कब हुई थी? मेरे जब मैं Your इंडिया first वापस आया 2015 was my first patient in India, and that patient was referred by a doctor only, a close relative of a doctor. Okay, good. So that's nice. It's heartening to see that you can actually make a difference with bariatric surgery. अजय शर्मा जी पूछते हैं HbA1c 5.8. अजय, दिस विल बी प्री डायबिटीज, डायबिटीज तो नहीं कहलाएगा, बट ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन तो है. तो अगर HbA1c 5.8 है तो हम BMI का कट ऑफ 32.5 लेंगे फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी. 35 का थ्रेशोल्ड जी. नहीं रखेंगे. विपिन जी asks about a 28-year-old lady weighing 110 kg. What would be the bariatric surgical procedure of choice? Weight 130, sir. It depends on whether she is married and has completed her family. Okay, 110 kg या 28, तो दो सिनेरियोज लेते हैं. एक तो दो बेबीज हैं, फैमिली कंप्लीट है, और दूसरा ये कि अभी मैरिज नहीं हुई, अभी बेबी प्लान करना है. अगर मैरिज नहीं हुई है तो आई विल डू अ जस्ट स्लीव गैस्ट्रेक्टमी. बट अगर शादी हो गई है, फैमिली कंप्लीट हो गई है, आई विल ऐड अ जेजुनल बाईपास टू स्लीव गैस्ट्रेक्टमी. So that would be sleeve gastrectomy with a proximal jejunal bypass. So this procedure is a midway between a sleeve and a complete gastric bypass. I will not do a complete gastric bypass in her still. Right. So she is married, but I think Vipin ji, you've got the answer. अच्छा, बेबी नहीं है, so then we will just go for the conservative surgery for the gastric bypass. Yes. अभी बेबी नहीं हुआ. जी. हमने डॉक्टर साहब एक ABCD की बात की थी एंड F भी आपने जोड़ा था. That was to help for checking how to Hello. decide. करुणा जी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं. या करुणा जी asked a question, can metabolic disease like blood pressure will everybody get a cure of diabetes or blood pressure? Sir, diabetes is a chronic lifestyle disorder. So I anybody apologize who for the claims technical. that, yeah, so diabetes is a chronic lifestyle disorder, I never tell them that I will cure the diabetes. Nobody in this world can cure the diabetes. We can control it. So that has to be very clear, a very correct message to all the patients, that we will try to control the diabetes, but we cannot cure it. When we say control, it might happen that they may not need insulin or oral hypoglycemic agents, but they cannot have liberty of eating sweets and sugar. That is for sure. So this is also important. And एक ABCDE फॉर्मूला एक बैरियाट्रिक सर्जन ने बनाया था, उनका नाम था ली, LEE.
हमने उसको एंडोक्रिनोलॉजी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके ABCDE कर दिया. So, Dr. Saab, if I can read out the formula, then can you talk about your patients and what has happened to them? A is for age. यदि आपकी एज कम है, जैसे हम 35 ईयर्स पे सबको इनकरेज कर रहे हैं कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी करा लें अगर 100-120 किलो वेट है, एज कम हो तो रेमिशन ऑफ डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी, आफ्टर द मेटाबॉलिक सर्जरी. बी इज फॉर बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है. सी इज फॉर सी पेप्टाइड विच कम्स फ्रॉम द पैंक्रियास, अगर आपका पैंक्रियास अभी भी काम कर रहा है तो डॉक्टर अभिषेक कैन एक्चुअली मेक योर डायबिटीज गोइंग टू रेमिशन. बट अगर आपका पैंक्रियास थक गया है आफ्टर अ डी फॉर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, मोर देन 6 years, then chances are less. And E of course is for energy, enthusiasm, expertise of the surgeon. अच्छे सर्जन के हाथ में जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. So डॉक्टर साहब, this ABCD formula, some patients who have actually achieved diabetes remission in your practice and some who were not able to achieve. So I'll tell you about this. So the doctor who coined this ABCD, his name is Dr. Vijay Lee, and he's from Taiwan only. And I've got to share my thoughts many times with him, and he has worked a lot upon diabetes. So diabetes, as you said, there are two things. One is remission, in which we also call it complete remission or partial remission. सो बहुत सारे मेरे मरीज हैं जो ऑलरेडी इंसुलिन पे भी थे और जिनका सी पेप्टाइड लेवल्स भी बहुत कम था. इसका मतलब पैनक्रियास बर्नआउट हो रहा था. सो ऐसे मरीजों में जब हम गैस्ट्रिक स्लीव विद duodenojejunal बाईपास, विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ BPDS, बिलियो पैनक्रियाटिक डाइवर्शन सर्जरी, आपने सुना होगा, बहुत पहले होती थी, उसका मॉडिफिकेशन है. तो ऐसे कई मरीज हैं मेरे जिनका इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो गया, कुछ का इंसुलिन बंद होके वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे आ गए. पर मोस्टली जो पेशेंट्स ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे होते हैं उनको इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी दे डोंट नीड एनी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. बट यस, हाइपरटेंशन और हाइपोथायराइड की ड्रग्स कुछ दिनों तक चलती है, कुछ महीनों तक, फिर धीरे धीरे उसका डोज कम होता है. लेकिन डायबिटीज का इफेक्ट तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी देखने मिल जाता है, बिफोर दे लूज वेट, बिकॉज द हार्मोन्स चेंज इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी. तो जो मेटाबॉलिक एडवांटेजेस हैं वो एक्चुअली जल्दी पता चलती हैं एज कंपेयर्ड टू द वेट लॉस एडवांटेजेस और द बैरोमेटाबॉलिक चेंजेस. यस. एंड अश्विनी मल्होत्रा जी सेइंग थैंक यू फॉर योर टॉक, एंड डॉक्टर आर एस चौधरी आपको शाबाशी दे रहे हैं डॉक्टर अभिषेक, अपनी सर्जरी का नाम रोशन so कर much, दिया. sir. Thank you so But a much, medical question again from Vipin ji. Do we need vitamin B12 and iron lifelong after bariatric surgery? सर गैस्ट्रिक बाईपास के बाद तो लेना ही चाहिए. बट अगर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है तो इट डिपेंड्स ऑन, सी बहुत बार ये होता है कि जब हम पेशेंट को बोलते हैं लेना पड़ेगा सप्लीमेंट, वो बोलते हैं नहीं सर हम कैसे लेंगे. और जब हम उनका टेस्ट करते हैं वो ऑलरेडी विटामिन B12 और आयरन डिफिशियंसी उनको ऑलरेडी रहता है सर्जरी के पहले ही. बिकॉज ओबेसिटी इटसेल्फ इज ए, सी ओबेसिटी इज ए न्यू माल न्यूट्रिशन. सो हम उनको बताते हैं कि आप ऑलरेडी डिफिशियंट हो ही उसमें, अगर आप सर्जरी कराओ चाहे ना कराओ आपको ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा. तो अगर आप करा लेते हो, अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में जो प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्स हैं उनको बहुत गलत नजरिए से देखते हैं. हम जानते हैं कि यूएस में और बाकी कंट्रीज में एक सेपरेट कॉर्नर होता है मल्टीविटामिन का और लोग 2-2 किलो के डब्बे लेके जाते हैं सप्लीमेंट्स के. तो वो चीज इंडिया में कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आ रहा है. हम तभी सप्लीमेंट्स लेते हैं जब हमको पता होता है कि हाँ भाई अब जरूरत है. हम प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्स लेते ही नहीं है, विच इज बैड एक्चुअली. जो विटामिन्स अगर आप ले रहे हैं, विटामिन मींस इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ योर डाइट, और कई बार हमारी डाइट से वो पूरा नहीं हो पाता. हम थियोरेटिकली तो कहते हैं भी खूब सारा मीट लें, चिकन लें, नॉनवेज खाएं अगर आप खा रहे हैं, बट प्रैक्टिकली लोग कितने ग्राम खाते हैं हफ्ते में. और फिर हम कहते हैं कि खूब सारी कलर्ड फ्रूट्स, कलर्ड वेजिटेबल्स, कलर्ड सैलेड्स खाएं, बट उसकी भी क्वांटिटी देखें कितनी दी जा रही है. एंड देन इफ यू बिगिन थिंकिंग अबाउट ऑल द पेस्टिसाइड्स दैट आर बीइंग यूज्ड, pollution, so many things, तो डर के मारे आदमी खाना ही खाना बंद कर दे. तो because keeping all these practical issues in mind, there is no harm in supplementing vitamins and minerals, even if you feel that you are deficient in them. And almost all of us, because of our diet, we are deficient. But एक और question vitamin B12 और iron पे आ रहा है. After bariatric surgery, will the tablets work, or do we need sublingual vitamin B12, injections of vitamin B12, or maybe iron injections?
सर यूजली जरूरत तो नहीं पड़ता है इंजेक्टेबल्स का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम कब आती है जब आप क्रॉनिकली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हैं। तो ऑब्वियसली वी नो दैट इफ यू आर क्रॉनिकली डिफिशिएंट देन आयरन एब्जॉर्प्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो इसलिए अगर आप रेगुलर ले रहे हैं पोस्ट जो स्पेसिफिक मैंने बोला बेरियाट्रिक सर्जरी सप्लीमेंट जिनका आईआरडीए ज्यादा होता है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। बट यस, देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिनको हमको एडमिट करके इंजेक्टेबल आयरन देना पड़ा है और विटामिन बी 12 भी देना पड़ा है, बिकॉज समटाइम्स विटामिन बी डिफिशियंसी कैन प्रेजेंट जस्ट विथ वॉमिटिंग। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि सिर्फ वॉमिटिंग हो रहा, कंप्लेंट कर रहे हैं और पता लगा हम इवेल्युएट ही नहीं कर पा रहे कि क्यों वॉमिट हो रहा, हम उसको सर्जरी से कोरिलेट कर रहे हैं। बट व्हेन वी go into the depth we find that these patients are deficient in vitamin B। तो कभी कभी जरूरत पड़ता है। वॉमिटिंग इसलिए होती है क्योंकि जो पेट की जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो कमजोर हो गई हैं। और विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व हेल्थ के लिए। तो यस, किसी को कंप्लेंट होगी कि मेरे पैर सुन हैं, या पैरों में जलन हो रही है, नीडल्स चुभ रही हैं, बट उसके अलावा हो सकता है लोग कहें जी वॉमिटिंग है, या जी कच्चा हो रहा है, या दस्त लगे हुए हैं। ये सब चीजें विटामिन बी 12 के साथ लिंक्ड होती हैं। बट वी हैड सच ए ग्रेट इवनिंग विद यू डॉक्टर अभिषेक, वी लर्न सो मच। और आपने सर्जरी को इतनी सरल भाषा में, इन सच सिंपल वर्ड्स यू हैव एक्सप्लेन्ड इट टू अस। मतलब मेरा भी दिल कर रहा है मैं बैरियाट्रिक सर्जन बन जाऊं। नहीं सर, मैं सोचता हूँ कि मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बन जाऊं। It's actually teamwork which is required. And यस Karuna madam एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, that will be our last question for today. Bariatric surgery अपनी जगह बहुत अच्छी है, and it helps people who are in need of good health. And we should not, for all the people who live with obesity, with overweight, खासकर जो above 32.5 BMI वाले हैं, we should not look down upon them. We should not be doing body shaming. अगर वो हमारी फैमिली में है, हमारे फ्रेंड्स में, वी शुड एनकरेज देम टू गो एंड स्पीक विद अ बेरियाट्रिक सर्जन। हो सकता है वो सर्जन मना कर दें, हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मना कर दें, पर एक बार कंसल्ट जरूर करें आप एंडोक्रिनोलॉजी में और बेरियाट्रिक सर्जरी में। तो मैडम ये पूछ रही हैं करना जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर सोसाइटी, बट अ सिंगल टेक होम फॉर ऑल ऑफ अस so that we are able to maintain our weight and then none of us need bariatric surgery. What would that single take home be? सर, उसके लिए एक शब्द है काइजन। आपने सुना होगा, ये जापानीज वर्ड है, which means that you cannot achieve everything overnight. So health is also something which you can't buy. You have to achieve it at every minute. So one is kaizen, second is being mindful. Everybody, all of us know what is good and what is bad. The only thing is we should know when to say no to something. Also, we are surrounded in an environment where there are a lot of things which we cannot avoid. Maybe because of social reason. कोई तिरुपति से आया है या कोई वैष्णो देवी से आया और आपको बड़ा सा लड्डू दे दिया और बोला ये लीजिए प्रसाद है, खाइए। तो मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज अगर मॉडरेशन पे आप कर रहे हैं और आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मुझे नहीं लगता कभी आपको मेरी या सर की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज मॉडरेशन, being mindful about whatever you're doing, and always remember that you have to make it a habit कि अगर जैसे हम रोज खाना खा रहे हैं तो हम रोज कुछ ना कुछ अपने लिए 40 मिनट एक्सरसाइज या कुछ भी देना जरूरी है। बिकॉज वो भले ही आपको ऐसा लगेगा कि ये 40 मिनट ठीक है, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो जो करना जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आ रहा है moderation. That is the single word that we are getting. Another word we are getting is mindfulness and regular exercise. Invest 30 minutes every day in exercise. टोटल कितना बना? 15 घंटे बना पूरे महीने का, साल का 150 घंटा बन गया। That will help prevent many admissions in hospital. वो इतने सारे घंटे आपके बच जाएंगे, आप काउंट भी नहीं कर सकते। एक और चीज जो डॉक्टर अभिषेक ने हमें भी पढ़ाई या सिखाई, ही इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सेहत, सेहत एक एम है, एक लक्ष्य है, इट इज अ गोल फॉर अस। मगर हेल्थ एक रास्ता भी है, एक तरीका है, एक जरिया है उस लक्ष्य तक पहुंचने का। सो हेल्थ इज अ टारगेट, बट इट इज ऑल्सो अ टेक्निक और अ टूल टू अचीव दैट टारगेट। हेल्थ इज अ प्रोसेस इन इटसेल्फ। डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि ये रोज की बात है, हर मिनट की बात है, यू हैव टू रिमेन माइंडफुल।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज मैंने हेल्दी खाना खाया और कल मैं ना खाऊं. सो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज डायनामिक. सो देयरफॉर आई थिंक सेहत को हमें एक लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, और यही एक सेहतमंद जिंदगी का और एक सेहतमंद दिमाग का या दिल का या मन का यही एक तरीका है फॉलो करने का. Dr. Abhishek, it's been great having you with us. We have this Dr. KK's Med Talks show every day. सब लोग हमारे साथ रोज जुड़े होते हैं. मैं मंडे और थर्सडे ये शोज करता हूँ, बट पहली बार हमारे पास सर्जन आए और हमें बहुत अच्छा लगा. We have learnt a lot. Ritu, could you please show a certificate of appreciation for sir? Thank you, sir. Anything else? And हाँ, it's an anything else जो an आप सबके honor. साथ? हाँ. I'm sorry, you're saying something. Anything else you would like to share with everybody? मैं बस एक ही बात बोलूंगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Anybody who's suffering from obesity, they don't need your sympathy. They need your empathy and support. So next time, if you look at someone who is having obesity, have empathy towards them and try to find out how we can help and we can make society better, a livable person for everyone. And I would like to thank Sanjay sir. You have been an inspiration for many, including me. And it's an honor to share screen with you, sir. Oh, the honor is mutual, it's ours. And a warm thanks to Dr. Noor Aga as well, who has joined in from Kabul today as well to listen to us. Yes. आप सब लोग का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे आज. डॉक्टर के मेड टॉक्स होता है डॉक्टर के अग्रवाल सर की लविंग मेमोरी में, और रोज होता है 7 बजे. मैं आपके साथ जुड़ा होता हूँ हर सोमवार और हर जुमेरात, एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे. 25 तारीख को प्रोफेसर नितिन कपूर CMC वेलोर के साथ से होंगे हमारे साथ. वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइबर डाइट. आज हमने बात की बैरियाट्रिक सर्जरी की एंड हाउ वी कैन यूज इट टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट डिजीज एंड टू मैनेज डायबिटीज एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. एंड 25 तारीख को डॉक्टर नितिन के साथ हम बात करेंगे अबाउट डाइट, हाउ टू इंक्रीज फाइबर इन आवर डाइट. बट आप सबका शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद. बी हैप्पी एंड बी हेल्दी. जय हिंद. धन्यवाद सर. जय हिंद.